Welcome all on this Professor Iyer's Infra show. Now this show is very exclusive on the healthcare sector, and today we have some eminent guests who have done extraordinary work in the healthcare sector and also a public figure with us. We have Nilesh Mandlewala. He's from Donate Life, and we'll be specifically talking with him on the issues concerning organ donation. Very important thing at this time when we are seeing so much of death and destruction around us. Yeah. Could we save the lives? So that is the mission that Nilesh Bhai stands for. He has joined us from Surat on my show exclusively and taken time off. We have Mr. K. Srikumar, our old friend, a man who's, I don't think we need a doctor if we have Srikumar around us. That is the way I look at it. Srikumar is from the medical diagnostics industry. Once upon a time, he was a key man in the game plan of Azim Premji, Wipro. But of course, there were certain events in his life, including, mothers, taking care of mother for a decade, literally in the most difficult condition. Shri has got the blessings, the way he has taken care of his own mother. But later on, he has been involved with Ayurveda and natural medicine and other things. And he's according to me, he's one of the genius personalities in the country who can discuss on these subjects, knows deeply about both Ayurveda and homeopathy and naturopathy. So welcome K. Srikumar. Thank you, Professor and everyone. And he has brought a very innovative product called the Ozonator, and he has developed this product with one of his friends through his company ONT, and we will be discussing that with him because this technology will remove the idea of fumigator, and it is the most important thing that can actually change the destiny of this country in the COVID times. A very important product he has developed during COVID times. And we have PVSN Murthy, our public figure, who worked with several multinational companies and who always joins us as a public person on our discussions. Welcome to all, sir. Thank you, Professor. So if I require the permission of both Srikumar and Murthy, then we'll first engage Nilesh Bhai, and we will start with the most important area of life, importance of life, importance of organ donation, and what are the challenges in such critical time. And first salvo firing with Nilesh Mandlewala ji. Nilesh Bhai, अभी तो इस समय तो ऐसी हालत, नमस्कार साहब, अभी तो इतनी हालत है साहब, अभी सूरत में भी काफी मौतें हुई, अहमदाबाद में हुई, बड़ौदा में शायद कम हुई, पर गुजरात का जो एपिसेंटर ऑफ कोविड था वो बेसिकली अहमदाबाद रहा और सूरत नेक्स्ट पे रहा. तो ऐसी परिस्थिति में इतनी बुरी हालत में जहां हम लोगों को मिल नहीं पा रहे हैं और लोगों को हम मतलब सपोर्ट देना भी काफी मुश्किल है, ऐसे परिस्थिति में आपकी ऑर्गेनाइजेशन डोनेट लाइफ ने किस प्रकार से इस समय, हाउ यू वर सक्सेसफुल, बिकॉज आई एम हियरिंग एवरी नाउ एंड देन यू कीप सेंडिंग मी वीडियोस एवरी नाउ एंड, आपने किसी न किसी को बचाया है, किसी न किसी की जान को आपने बचाया है, किसी न किसी को ऑर्गन मिला है, और ये चीज बहुत बड़ी बात है और इसकी डिस्कशन कहीं नहीं हुई है. और मैं चाह रहा हूँ, ठीक है कुछ राष्ट्रीय चैनलों ने आपको इंटरव्यू किया, पर आई थिंक कोई डिटेल डिस्कशन इस बात पे नहीं हुई है कि आपके जैसे, जो ना तो आप डॉक्टर हैं, आप तो केवल एक committed person है from the society, and I have seen your commitment, extraordinary commitment that I have seen. So I want you to tell us what are the challenges in such situation. आपने कैसे इसको अचीव किया, आपने कैसे जाने बचाई? अय्यर जी, हम लोग 2005 से ऑर्गन डोनेशन के अंदर काम कर रहे हैं, राइट सर. और हमारी आज जो गुजरात में जो ऑर्गन का डोनेशन जो हो रहा है उसमें से 50% से ज्यादा ऑर्गन हमारी संस्था डोनेट लाइफ के माध्यम से हो रहे हैं. राइट सर. गुजरात में अभी तक 43 हार्ट का डोनेशन हुआ है. राइट. उनमें से 33 जो हार्ट है वो हमारी संस्था डोनेट लाइफ के माध्यम से डोनेट किए गए हैं. राइट. उसी हिसाब से गुजरात में 16 लंग्स के डोनेशन हुए हैं, उसमें से 14 लंग्स है वो सूरत से डोनेट किए गए हैं. और अभी तक हमारे डोनेट लाइफ संस्था के माध्यम से 392 किडनी का डोनेशन हुआ है, 162 लीवर का डोनेशन हुआ है, 8 पेनक्रियास हुआ है, 33 हार्ट, 16 लंग्स,
और कॉर्निया, उन मिला के करीबन 900 से ज्यादा ऑर्गन्स एंड टिश्यू के डोनेशंस हुए हैं। उनकी वजह से हमारे देश के विभिन्न राज्यों और विदेश के कुल मिला के 829 लोगों को नया जीवन मिला है। लेकिन जो पिछले एक साल की तुलना में हम बात करें तो जो कोविड का समय है वो बहुत टफ रहा, क्योंकि कोविड के समय में पूरे देश में ये ऑर्गन डोनेशंस की रेट बहुत कम हो गई थी। राइट। इसी हिसाब से गुजरात में भी ऑर्गन डोनेशंस का रेट कम हुआ था, लेकिन हमारी संस्था डोनेट लाइफ ने सूरत से कंटिन्यूस उसके अंदर भी काम किया, आईसीयू में जाके काम किया, लोगों को समझाया कि जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन आज कितने लोगों के ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट है, और खास करके कोविड के महामारी के दरमियान लंग्स की ट्रांसप्लांट की भी रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ी हुई थी। उसी समय हम लोग अस्पताल में जाके लोगों को समझाने के अंदर सफल रहे कि हमारा जो स्वजन है वो ब्रेन डेड है और उनका शरीर जल के राखी हो जाने वाला है। उससे अच्छा है कि हम उनके ऑर्गन्स का डोनेशन करेंगे तो 5 या 6 लोगों को नया जीवन मिलेगा। और ये जो नया जीवन मिलता है वो केवल वो व्यक्ति को नहीं मिलता है, लेकिन उनके पूरे परिवार को मिलता है। बिल्कुल। ये जी कहने में ये बात बहुत सरल लगती है, लेकिन इस कोविड की महामारी के समय में अस्पताल में आईसीयू में जाके काम करना बहुत कठिन होता था। लेकिन मैं सलाम करता हूँ उन डोनर परिवारजनों को जिन्होंने हमारे काउंसलिंग के बाद अंगदान का निर्णय किया। हमारे सूरत शहर के डॉक्टर्स और अस्पताल ने भी हमें सहयोग किया, और हमारे प्रशासन उन लोगों ने भी सहयोग किया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी सहयोग किया। तो पूरी टीम वर्क की वजह से और हमारे जो वॉलंटियर्स दिन रात हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के काम करते हैं, वो सबका सहयोग की वजह से जो टीम वर्क जो हुआ, उनकी वजह से हम लोग सूरत से आज कोविड की महामारी के दरमियान एक साल के अंदर 97 ऑर्गन एंड टिश्यू का डोनेशन करवाने में हम लोग सफल रहे। Congratulations once again from all of us. Congratulations, sir. Because Wonderful job. Murthy Saab is joining from Telangana, from Hyderabad, and Shri Kumar Saab is from Bangalore. So congratulations to our friend from Surat and wonderful work that he has done. Lovely, lovely. Really inspiring. Lovely. Very inspiring. Very inspiring. तो नीलेश भाई, मेरा एक सवाल है आपसे, इसी से संबंधित एक सवाल है कि हमने तो आपको पहले से काम करते हुए देखा, जब इसकी तरफ कोई जाना ही नहीं चाहता था। मतलब आपने इतने झेले हैं, मतलब कई बार आपको गालियां भी पड़ी हैं, कई बार आपको मुश्किल पड़ी है ये किसी को समझाने के लिए कि भाई जो मृतक के समय पे अगर ऑर्गन डोनेट हो तो ही उसका काम हो, नहीं तो वो मतलब जान चली गई, वो जान भी गई, दूसरी जाने भी गई। तो ये कैसे आपने एक माहौल बनाया कन्विंसिंग करने का लोगों को कि ये ऑर्गन डोनेशन इतना इंपॉर्टेंट कार्य है कि मृत्यु के बाद भी जीवन दूसरे के अंगों, अपने अंगों के को दूसरों के रूप में देख सकते हैं। किसी को आंख मिल गई, किसी को लिवर मिल गया, किसी को क्या बोलते हैं आपका किडनी मिल गया। तो इस प्रकार से कई जानें बचती हैं, कई जानों में जान रह रही है, एक जान जा रही है पर कई जानों को आबाद करके जाती है। तो ये कंसेप्ट कैसे लाया गया और किस प्रकार से आपने इसकी मुहिम छेड़ी? शायद ही, मेरे को नहीं लगता कि भारत में कोई इतना कोई पर्सन कॉमन सिटीजन काम किया जितना आपने किया है। ये डॉक्टर और कोई मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग काम कर रहे हैं वो समझ में आता है, लेकिन आपके जैसे प्रोफेशनल, ऑफ कोर्स यू हैड अ इंश्योरेंस बैकग्राउंड एंड अदर थिंग्स, बट मैं कहता हूं कि आपने एक मुहिम, मतलब एज अ पर्सनल मिशन आपने इसको किया है। तो काइंडली टेल पीपल हाउ दे कैन कम एंड एनेबल दिस काइंड ऑफ वर्क, और कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। मैंने 2004 से मेरे फादर की किडनी खराब हो गई थी, वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट हुआ कि जब भी मेरे फादर डायलिसिस के ऊपर थे, तभी मैंने डायलिसिस सेंटर पे देखा कि कितने लोग हैं जिसको किडनी की रिक्वायरमेंट होती है और डायलिसिस के ऊपर जीवन व्यतीत करना पड़ता है। डायलिसिस से क्वांटिटी लाइफ मिलती है, लेकिन क्वालिटी लाइफ तो आपको ट्रांसप्लांट से ही मिलेगी।
वो Right. सोच मेरे मन में आई और वहां से मेरी लाइफ का भी एक टर्निंग पॉइंट हुआ और मैंने तय किया कि Right. मुझे ये ऑर्गन फेल्योर पेशेंट के लिए काम करना है। Right. और हम लोग काम करते गए, अकेले काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। और आज जो बीज जो बोया हुआ था वो जो बीज है आज वटवृक्ष बन के बहुत से लोगों को नया जीवन दे रहा है। लेकिन ये शुरुआत है। शुरुआत इसीलिए है अय्यर जी कि हमारे देश में हर साल 5 लाख से अधिक लोगों की मौत ऑर्गन्स न मिलने की वजह से होती है। Right. आज 125 करोड़ की आबादी वाला हमारे देश ऑर्गन डोनेशंस के मामले में बहुत ही पीछे है। हमारे देश में ऑर्गन डोनेशंस का रेट है 0.08% है। उनकी Okay. वजह ये है कि हमारे देश में लोगों में ऑर्गन डोनेशंस के प्रति अज्ञानता है। कौन से Right. ऑर्गन का डोनेशन हो सकता है, कौन ऑर्गन डोनेशन कर सकता है, ब्रेन डेड क्या है। पहले ये ऐसा था कि लोग ऐसे पहले जब हमारा हृदय बंद हो जाता था तभी लोग मानते थे कि उनकी मृत्यु हो गई है, वो डेथ हो चुका है। लेकिन हमारे यहाँ लॉ में बदलाव आया। 1994 में हमारे यहाँ छोटा ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट बना। इसके अंदर हम जो ब्रेन डेड व्यक्ति है उनके ऑर्गन्स का डोनेशन कर सकते हैं। लेकिन लोगों को पता नहीं है कि भाई ये क्या है। लोगों में Right. जागरूकता नहीं है कि ब्रेन डेड क्या है। ब्रेन डेड में हम कौन से ऑर्गन्स का डोनेशन कर सकते हैं। जो हमारे सॉलिड ऑर्गन्स है, किडनी है, लीवर है, हार्ट, पेनक्रियास, लंग्स, जो हमारे सॉलिड ऑर्गन्स है वो हम ब्रेन डेड के अंदर डोनेट कर सकते हैं। और हमारा जो टिश्यू है, कॉर्निया है, स्किन है, बोन्स है, हार्ट वाल्स है, वो हम नेचुरल डेथ में भी डोनेट कर सकते हैं और ब्रेन डेड में भी कर सकते हैं। दूसरा कि लोगों के अंदर डर है कि आज हम ऑर्गन डोनेशंस करेंगे तो हमारा बॉडी खराब हो जाएगा, हमारा बॉडी डिशेप हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि ऑर्गन डोनेशंस में बॉडी बिल्कुल खराब या डिशेप नहीं होता है। जैसे एक सर्जरी होती है, सर्जरी में डॉक्टर ऑपरेट करते हैं, जैसे स्टिचेस लेते हैं, उसी हिसाब से ऑर्गन डोनेशंस में भी जो चेस्ट और एब्डोमेन ओपन करके हार्ट प्रोक्योर करके उनको स्टिचेस लेके मान सम्मान के साथ परिवार को बॉडी सुपुर्द किया जाता है। बॉडी बिल्कुल टी-शेप नहीं होता है और आप जो आपकी धार्मिक क्रिया करना चाहते हैं उसमें भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। दूसरा, लोगों के मन में ऐसा होता है कि आज हम ऑर्गन डोनेशंस करेंगे तो आज हम आंखों का दान करेंगे तो हमें स्वर्ग का रास्ता नहीं मिलेगा। ये गलत सब मान्यताएं चलती रहती है। हमारा शरीर जब भी हमारी डेथ होती है तो पहले आत्मा पहले चली जाती है। आत्मा तो अजर और अमर है। जो हम शरीर का अग्नि संस्कार करते हैं या जो भी धर्म के हिसाब से हम दफनाते हैं तो हमारा सिर्फ खोखा ही होता है। तो ये सब सोच बदलनी चाहिए। दूसरा कि लोग ऐसा मानते हैं कि धर्मों में ऐसा कहा गया है। जब भी हम काउंसलिंग करते हैं तभी ये क्वेश्चन हमें बार बार आता है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि धर्मों में ऐसा कहा गया है कि ऑर्गन डोनेशन करना पाप है। भैया जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि कोई भी धर्मों में ऐसा नहीं कहा गया है कि अंगदान करना पाप है। हमारे यहाँ पहले हम हमारे शास्त्रों में देखेंगे तो पृथ्वी के ऊपर सबसे पहला ट्रांसप्लांट ही भगवान गणेश जी का हुआ था। इसी तरह जब महर्षि दधीचि ऋषि ने जब दानवों के साथ युद्ध करने की बारी आई तो अपनी हड्डियों का दान किया था। तो दान का महिमा तो हमारे शास्त्रों में भी है। आज मैं आपके माध्यम से लोगों को पूछना चाहूंगा कि ये जो ऑर्गन्स है कोई फैक्ट्री में बनते नहीं है। जब भी हमारे परिवार में कोई सदस्य को कुछ सर्जरी की जरूरत होती है, तभी खून की उसकी जरूरत होती है, ब्लड की जरूरत होती है, तो हम वो ब्लड कहाँ से लाते हैं? वो ब्लड हम ब्लड बैंक में से लाते हैं। इसी तरह ये जो ऑर्गन्स है वो कोई फैक्ट्री में बनते नहीं है। तो जब भी कोई व्यक्ति ब्रेन डेड होता है तभी उनके ऑर्गन्स का डोनेशन कराएंगे तो ऐसे जो ऑर्गन फेलियर मरीज है उनको नया जीवन मिलेगा। अय्यर जी, जो किडनी और लीवर ऐसे ऑर्गन्स हैं कि जो परिवार में से भी कोई दे सकता है। कोई किसी की किडनी खराब है या लीवर खराब है तो परिवार में से भी कोई दे सकता है। लेकिन समझ लो कि परिवार में से नहीं दे सकता है तो क्या उसको लाइफ टाइम किडनी के अंदर उसको डायलिसिस के ऊपर ही उसका जीवन व्यतीत करना पड़ेगा? उसको क्वालिटी लाइफ कैसे मिलेगी? उसको क्वालिटी लाइफ तभी मिलेगी
कि जब भी ऐसे कोई ब्रेन डेड व्यक्ति का ऑर्गन्स का डोनेशन हो, इतनी और लीवर में मैंने आगे बताया कि परिवार में से भी कोई दे सकता है, लेकिन समझ लो कि किसी को हृदय की तकलीफ है, उसकी हृदय का पंपिंग 5 या 10% है और डॉक्टर ने बोला है कि उसका ट्रांसप्लांट की जरूरत है, वो 5 स्टेप भी नहीं चल सकता है, खाने पीने पे उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है और बेड पे ही उसका जीवन व्यतीत कर रहा है। ऐसे जो हार्ट के जो मरीज है उनको हार्ट कौन देगा? जीतेगी तो कोई व्यक्ति अपना हार्ट का डोनेशन नहीं कर सकता है, उनको हृदय तभी मिलेगा कि जैसे ये ब्रेन डेड व्यक्ति का ऑर्गन डोनेशन हो, तभी ऐसे ऑर्गन फेलियर मरीजों को नया जीवन मिलेगा। बिल्कुल। सो नीलेश भाई, यू हैव गिवन अ वेरी नाइस अकाउंट ऑफ कि किस प्रकार से ऑर्गन डोनेशन, और मेरे ख्याल से आप एक आइडिया बता रहे हैं कि ऑर्गन बैंक की बात हो रही, जैसे ब्लड बैंक हो या बाकी हो, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट आना चाहिए भारतवर्ष में। क्या लगता है? नहीं भैया जी, इसमें बैंक तो नहीं, क्योंकि आज हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट ही इतनी है कि जैसे ही कोई ब्रेन डेड पेशेंट होता है और उनका ऑर्गन डोनेशन रोटो या नोटो यानी हमारे देश में नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में ये पूरा प्रोग्राम चलता है जो अवेयरनेस और एलोकेशन का काम करती है, और नोटो ने पूरे देश में 5 रोटो बनाया है। रोटो यानी रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा और छत्तीसगढ़, वो रोटो मुंबई में आते कि ये अस्पताल में उनकी मेन ऑफिस है। और फिर सोटो यानी स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके माध्यम से ऑर्गन का एलोकेशन होता है। और हमारे देश में इतनी रिक्वायरमेंट है कि जैसे ही ब्रेन डेड पेशेंट आता है तो तुरंत ही उसको सोटो, रोटो और नोटो के माध्यम से उसका एलोकेशन होता है। तो बैंक का तो अभी ये नहीं है, लेकिन मैंने ये ब्लड बैंक का इसीलिए बताया कि ब्लड हम पहले डोनेट कर सकते हैं, तो जरूरत होता है तभी हम उनको लेके आते हैं, लेकिन ऑर्गन के बारे में ऐसा नहीं है, वो तो तुरंत ही ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। बढ़िया। So with this very good knowledge that Nilesh Bhai is around us, and anytime I say Shri, you are also very active, and Murthy Saab, anytime we want to know from Nilesh Bhai what can be done in the case of emergency requirement and anybody, I think Nilesh Bhai is an authority on this, and he has faced it from the grassroots and established a mechanism which actually can become a complete national mechanism if the way he has done it, the way he has helped so many patients, so many people in need. I think that he becomes a societal example for all of us. So, Nilesh Bhai, wonderful for joining us in this episode, and you can continue, and I will come back to you again. But let me immediately go to what our friend Shri Kumar has sort of done, because we are all leaders. So let us hear what Shri Kumar has done. I wanted to ask a question to Nilesh Bhai. Yeah, why not? Sir, Why not? Go ahead. Yeah. Sir, your operations are limited to Gujarat or Surat, or you are doing for other interstates or nearby states or something like that? सर, हम ऑर्गन एलोकेशंस किसको करना है वो हमारी अथॉरिटी में नहीं है। मैंने आगे बताया वो सोटो, रोटो और नोटो के माध्यम से होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सूरत से गुजरात से कुल 43 हार्ट्स के डोनेशंस हुए हैं, उसमें 33 हार्ट सूरत से डोनेट किए गए हैं। उनमें से 22 हार्ट मुंबई में ट्रांसप्लांट हुए हैं, 5 अहमदाबाद में हुए हैं, 5 चेन्नई में हुए हैं, इंदौर में हुआ है, दिल्ली में हुआ है। तो देश के अलग अलग राज्यों में ये हुए हैं। और जो 14 लंग्स के डोनेशन सूरत से किए गए हैं, उनमें भी चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, सब जगह पे वो ट्रांसप्लांट किए गए हैं। तो आज जो सूरत है वो ऑर्गन डोनेशन, हालांकि सूरत में ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी न होने के बावजूद सूरत आज ये ऑर्गन डोनेशन में नेशनल मैप पे एक अपना स्थान बनाया है। मैं दूसरा भी आपको कहना चाहूंगा कि सूरत में नाइट लैंडिंग और टेक ऑफ की भी फैसिलिटी न होने के बावजूद हमने रात को भी कोई भी ऑड आवर्स में भी ऑर्गन्स को एक सिटी से दूसरे सिटी में हमने ट्रांसफर करवाए हैं। उसमें हम हमारे सूरत एयरपोर्ट अथॉरिटी का हमें बहुत ही सहयोग मिला है। पूरा नाइट भर एयरपोर्ट डायरेक्टर के सहयोग से
ओपन रहा है, जिससे स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन होता है। Right. So it is wonderful. So I hope Shri, you got the answer from him, because he Yeah, says yeah. there is a Absolutely. mechanism, there is a Yeah. national mechanism under the control of the government and agencies which Yeah. actually enables this transplant to go around. But his job is to make it available at Surat and Gujarat. Am I right, sir? और एक बात Yeah. Nilesh bhai will और help एक you. बात बोलना चाहूंगा कि सूरत से का जो ये है, सबसे कम उम्र के बच्चे का ऑर्गन डोनेशन सूरत से हुआ है। 2017 में 14 महीने का बच्चे का ऑर्गन डोनेशन सूरत से हमने करवाया था, और उनका जो है वो मुंबई की एक 3.5 साल की बच्ची में ट्रांसप्लांट किया गया था। और रिसेंटली दिसंबर 2020 में हमने सूरत से एक 2.5 साल के बच्चे का ऑर्गन डोनेशन करवाया। वो हमारे देश में सबसे कम उम्र के बच्चे का मल्टीपल ऑर्गन डोनेशन की वो पहली घटना थी, जिसके अंदर किडनी, लीवर के साथ में हार्ट और लंग्स को भी डोनेट किया गया। और वो एमजीएम चेन्नई में उनका जो हृदय है वो रशिया के एक 4.5 साल के बच्चे में ट्रांसप्लांट किया गया, और जो उनका जो लंग्स है वो यूक्रेन के 4 साल के बच्चे में ट्रांसप्लांट किया गया। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि सूरत के अभी तक 3 हृदय फॉरेन नेशनल्स में ट्रांसप्लांट किए गए हैं, एक यूक्रेन, एक यूएई और एक रशिया के बच्चे में वहां पे मुंबई और चेन्नई की अलग अलग अस्पताल में ट्रांसप्लांट किए गए हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ये ऑर्गन डोनेशन के माध्यम से हमारे देश भारत और जो ये 3 जो कंट्री है, जो रशिया है, यूक्रेन है और यूएई, और उन लोगों, ये हमारे देश के बीच में एक नया रिश्ता बना है, और वो रिश्ते का नाम है मानवता। Humanity, basically. Wonderful, sir. Right. Wonderful. Yeah. And we hope you can continue doing your good work. It is a wonderful work that you have done. And we congratulate Nilesh bhai Mandaliwala and Donate Life, his organization that is founded, and let his mission be successful to save lives. That is what we can pray, and we can wish on this day for Yeah. him. Thank you, sir, for And joining. One more question. Yeah. Yeah, Yeah, tell yeah. me. This is the Yeah, best that time is- for asking. Yeah, this comes under cadaver transplants, isn't it? Yes. And so there are some rules and regulations as per Government of India. Right. So normally the recipient or expected recipient is supposed to register and then wait for a period of time, I believe. Exactly. Yes, Yes. exactly. So the waiting time is quite long, isn't it? यस यस, जो वहां पे ऐसा होता है, मैं आपकी पूरी प्रोसेस कैसी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। समझ लो हमारे पास सूरत में कोई पेशेंट आता है, कोई पेशेंट ब्रेन डेड है, तो हम लोग पहले सोटो को इन्फॉर्म करते हैं, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे गुजरात का है, इनको इन्फॉर्म करते हैं कि हमारे पास फलाना ब्लड ग्रुप का पेशेंट है, उनकी उम्र कितनी है, उनके रिपोर्ट्स क्या है, वो सब हम सोटो को भेज देते हैं। जो ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट गुजरात में होती है वो ऑर्गन्स गुजरात को अलॉट, गुजरात के जो अलग अलग अस्पताल ने सोटो में नाम रजिस्टर्ड करवाए हैं उनके पेशेंट को, उनको एलोकेशन उसका क्रम के हिसाब से किया जाता है। लेकिन जो ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट गुजरात में नहीं है, गुजरात में हार्ट ट्रांसप्लांट एक ही अस्पताल में होता है, लंग्स का ट्रांसप्लांट गुजरात में नहीं होता है, तो सोटो वो लीड को फॉरवर्ड करती है रोटो मुंबई के अंदर। रोटो मुंबई उनके अंदर जो स्टेट है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उनको वो आगे ये करती है कि भाई सूरत में फलाना अस्पताल में ये ब्लड ग्रुप का पेशेंट है, और जो रिक्वायरमेंट आती है, उनका जो ब्लड ग्रुप मैच होता है, जो हाइट वेट जो भी उसका पैरामीटर मैच होता है, तो फिर वहां से वो लोग आते हैं, वो रोटो उनको अलॉट करती है, जिसका क्रम आता है उसको। वहां नहीं होता है तो रोटो वो लीड को फॉरवर्ड करती है नोटो को, यानी नेशनल में। नोटो पूरे देश को अलर्ट करती है, उसमें से कहीं से भी आएगा, फिर हमें इन्फॉर्म किया जाता है कि फलाने अस्पताल से ऑर्गन प्रोक्योरमेंट के लिए आएगा। ये हमारे जो इंडियन पेशेंट है इसके लिए समझ लो कि मैंने आगे आपको बताया कि हमने
यूक्रेन की लड़की में भी हमारा हार्ट ट्रांसप्लांट हुए, यूएई की लड़की में हुआ है और रशिया की बच्चे में भी हुआ है। तो जब भी कोई ब्लड ग्रुप का भारतीय नागरिक नहीं होता है तो जो अस्पताल होता है वो नोटो को रिक्वेस्ट करता है कि भाई देश में कोई भी भारतीय नागरिक अवेलेबल नहीं है तो ये हमारे यहाँ, और वो नागरिक जो है फॉरेन नेशनल्स जो है वो उसका नाम नोटो में भी रजिस्टर्ड है। तभी पूरा नोटो वो पूरा देख के कि भाई देश में ये ब्लड ग्रुप का कोई मरीज नहीं है तो ऑर्गन वेस्ट ना हो, उसीलिए जो फॉरेन नेशनल्स है उनको अलॉट किया जाता है। राइट। So Shri, you got it. You know, it's a very very organized, control and transparent also. Yeah. And highly, according to me, very transparent. Those who know in the system, it's highly transparent. And he told me that there's a very massive waiting period. You know, it's not easy, but it has to be first come first serve basis. Am I right, Nilesh bhai sahab? जो डिस्प्ले लगा है, लाइन आई, फर्स्ट कम फर्स्ट नहीं होता है इसके हाँ, मतलब अंदर। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट जो लाइन में लगा है, जिसकी जरूरत है, जिसको जरूरत है, उसका क्राइटेरिया होता है। उसी हिसाब से जो सोटो के अंदर जितने अस्पताल है उन लोगों ने रजिस्टर्ड करवाया है तो उसका क्राइटेरिया के वेटिंग के हिसाब से ऑर्गन अलॉट किया जाता है। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि किसी की भी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को ध्यान में रख के ऑर्गन्स के एलोकेशंस नहीं होते हैं। ओके, it is purely based on what is registered, what is coming in time, कौन लाइन पे लगा हुआ है, वो क्यों है, वो क्यों है, वो साइंटिफिक क्यों है। That's what I want to say. It's a scientific queue. जो क्यू पे लगा है, and if everything matches, those who are in the queue they get it. Am I right, sir? Get it, absolutely. And I qualify what Nilesh bhai has said. The qualification is if there is no Indian recipient, only in such condition the foreign recipients will get it. और उनका नाम भी नोटो में रजिस्टर्ड होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ, if they are registered in the नोटो रजिस्टर्ड होगा। और जो अस्पताल में फॉरेन नेशनल ट्रीटमेंट करवा रहे वो अस्पताल नोटो को रिक्वेस्ट करेगी कि देश में कोई भी नहीं है तो फिर हमारे यहाँ जो फॉरेन नेशनल भर्ती है उनको अलॉट किया जाए, तभी ये पूरा देख के होता है। नहीं तो ऐसा नहीं होता है कि भाई फॉरेन, पहला जो प्रेफरेंस है हमारे देश के नागरिक का। is always Indians, is always Indians. Yes, absolutely. So this is very clear. You know, I think the viewers will see this, will see with clarity. That's a very transparent, very organized, and also highly, I would say, scrutinized system. It's a highly scrutinized and safe system, if I am not mistaken. Nilesh bhai, it's a highly scrutinized, safe, monitored, and transparent system of organ donation in the country. Yes. And what is the time? Also, what is the time period between transplants from brain dead to patient new recipient? जो एक बार एलोकेशन हो जाता है उसके बाद में जो हार्ट का ट्रांसप्लांट है वो रेस अगेंस्ट टाइम होता है। हार्ट का ट्रांसप्लांट जब भी कोई भी टीम, समझ लो सूरत से हमारे ऑर्गन डोनेशन हो रहे हैं और देश में कोई भी कोने से टीम आती है, हैदराबाद है, चेन्नई है, मुंबई है, कोई भी टीम आती है, समझ लो चेन्नई की टीम सूरत आई है, ऑर्गन प्रोक्योर उनको अलॉट किया गया है और टीम ऑर्गन प्रोक्योरमेंट के लिए आई है। तो जब भी वो टीम आएगी पेशेंट को ओटी में शिफ्ट करेंगे, ओटी में शिफ्ट करके जो ब्रेन पेशेंट है उसका चेस्ट ओपन करके हार्ट का ब्लड सप्लाई बंद करते हैं, वहां से वो समय शुरू हो जाता है। वहां से हार्ट को निकाल के माध्यम से एयरपोर्ट से चार्टर या तो कमर्शियल फ्लाइट के माध्यम से देश के कोई भी कोने में पहुंचाना और वहां से वापस एयरपोर्ट से ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से जो अस्पताल है, रिसिपिएंट अस्पताल है, वहां पहुंचा के रिसिपिएंट के अंदर हार्ट डाल के उनका हार्ट का ब्लड सप्लाई शुरू करना, वो समय होता है 4 घंटे का। तो एक बहुत कीमती होता है, तो उसमें उनको ग्रीन कॉरिडोर प्रोवाइड किया जाता है और ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से ये पूरी प्रोसेस होती है। और जो किडनी और लीवर जो है वो भी हम लोग जो सूरत से अहमदाबाद जो होता है
वो भी हम लोग ग्रीन कॉरिडोर 250 पौने 300 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर हमारे सूरत शहर पुलिस और हमारे राज्य के विविध शहर और ग्रामीण पुलिस का सहयोग से पूरे पौने 300 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बना के वो अहमदाबाद किडनी और लीवर भिजवाते हैं। Very good. And the logistics of this transportation is fantastic. In fact, I have heard they are so meticulously planned. They come from any corner, from Surat to Hyderabad or Chennai in very fast time, and logistics are very well done. And that is Yes, one of the yes. best Next time logistics is which we have seen. That is to be सर appreciated इसमें very well. ऐसा होता है कि इसमें कोऑर्डिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि समझ लो कि अलग अलग शहरों से टीम आती है। अभी बीच में हमारे यहाँ एक टीम आई थी मुंबई से, एक टीम आई थी हैदराबाद से, एक टीम आई थी अहमदाबाद से, और 3 टीम आई चौथे शहर में आई, यानी सूरत शहर में आई। तो वहां से तीनों टीम का कोऑर्डिनेशन करना, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करना, एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ कोऑर्डिनेशन करना, ये बहुत मैनेजमेंट का काम होता है और टाइमली करना पड़ता है, क्योंकि उसमें समय नहीं मिलता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो हमें आज जो हमारे सूरत का जो सहयोग है, सूरत आज ऑर्गन डोनेशन में इतना काम कर रहा है, उसका कारण यही है कि हमारे डॉक्टर्स, प्रशासन, सबका हमें सहयोग बहुत मिलता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी सहयोग मिलता है, प्रशासन का सहयोग मिलता है, ग्रीन कॉरिडोर के लिए सब जगह पे पूरा सहयोग मिलने की वजह से, और आज हमारे वॉलंटियर्स दिन रात काम करते रहते हैं। प्रेस और मीडिया का सहयोग मिलता है कि जिसकी वजह से पूरे देश में ऑर्गन डोनेशन का जो मैसेज है वो जाता है। तो एक अवेयरनेस इतनी बढ़ती है, जिससे भले आज सूरत में काम हो रहा है, लेकिन दूसरे सिटी में भी उनका न्यूज जाने की वजह से दूसरे सिटी में भी ऑर्गन डोनेशन की अवेयरनेस बढ़ती है। और हम भी बोलते हैं कि आज सूरत कर सकता है तो हमारे देश के दूसरे शहरों क्यों नहीं कर सकता है। ब्रेन डेड तो हर जगह पे लोग होते हैं, और इतने आज समझ लो कि 5 लाख लोगों की मौत ऑर्गन्स न मिलने की वजह से होती है, तो कितनी बुरी बात है ये। अभी मैं रिसेंटली बात करूं तो मेरे पास एक फोन आया, एक 21 दिन की बच्ची को इंटेस्टाइन ट्रांसप्लांट करवाना है। 21 दिन की बच्ची है। कल ही उनकी मदर का मेरे पास फोन था कि सर अभी डॉक्टर्स ने बोला है कि अभी उनका वेट भी बढ़ा हुआ है, तो अभी जब भी कुछ हो तो आप हमारे ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर या हमारे जो रोटो है उनका संपर्क करिएगा। मैं कुछ जरूर हमारे पास आएगा तो हम सोटो और रोटो के और नोटो के माध्यम से अलर्ट करेंगे और जरूर होगा। अभी आप सोचो कि 21 दिन की बच्ची है, उनका इंटेस्टाइन ट्रांसप्लांट करना है। जिस बच्ची ने अभी तो जन्म लिया है, उसका जीवन की शुरुआत भी नहीं हुए, तो ऐसे बच्चे को नया जीवन कैसे मिलेगा। अभी ये ऑर्गन्स, हमें मैसेज आपके माध्यम से यही फैलाना है कि ये ऑर्गन्स जल के राखी हो जाने वाले हैं। आज मैं आपके माध्यम से एक बात और भी कहना चाहूंगा कि जब भी हमारे परिवार में कोई सदस्य की डेथ होती है, तो हम उनके शरीर के ऊपर ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो गहना होते हैं, वो निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं? कि हमारे परिवार के अन्य सदस्य को वो काम में लगेंगे, वो कीमती है। ये ऑर्गन्स इससे भी ज्यादा कीमती है, ये कोई फैक्ट्री में बनते नहीं है। तो उसको जलाए या दफनाने की बजाय हम जो ब्रेन डेड के किस्से में ऑर्गन्स का डोनेशन करवाएंगे, तो कितने लोगों को नया जीवन मिलेगा। एक बहुत बड़ा मुहिम है जो हमारे देश में चल रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई भी इसके अंदर मन की बात में, जब भी उन्होंने 2014 में जब भी वो प्राइम मिनिस्टर बने और अक्टूबर 2015 में मन की बात में उन्होंने भी ऑर्गन डोनेशन की बात की थी। तो सरकार भी इसके बारे में, लेकिन सरकार हर एक चीज, हम लोग सरकार के ऊपर काम नहीं लग सकते हैं। एज अ सिटीजन हमारी भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार को सहयोग करके ये जो कॉज है इसके अंदर हम लोग आगे बढ़े, लोगों को समझाए कि ऑर्गन डोनेशन क्या है, कौन कर सकता है, और इससे फायदा, इससे बड़ा कोई दान ही नहीं है। लोगों को समझाए। आज अंगदान महादान है, अंगदान जीवन दान है। वो मैसेज हम लोगों को घर घर तक पहुंचाए, तो मैं मानता हूं कि आने वाले सालों में
हमारा देश में एक भी आदमी ऑर्गन्स न मिलने की वजह से उनकी डेथ हो, ऐसा एक भी किस्सा नहीं होगा, वो मुझे पूरा विश्वास है। मुझे मुझे बड़ी खुशी है कि वी हैव नीलेश भाई, बिकॉज आई वांटेड टू स्टार्ट आवर फर्स्ट हेल्थ केयर take in my show, which has started again, and we have some 16 odd episodes, to start with Nilesh Bhai's ideas, because this is a very noble idea that while there is a death on the other side, there is a chance to give more than one life on the other side through that, I would say, organ donation system that must be strengthened now more and more, because we have deaths on the other side, we can have lives. So with this, Nilesh Bhai ka jo point hai, and I am coming to this segment close, and we will give a link again and can join. Nilesh Bhai, yes. मैं एक चीज कहना चाहूंगा ये कि हमारी डोनेट लाइफ संस्था का जब भी शुभारंभ हुआ था, जो ब्लेसिंग्स हमको मिली थी परम पूज्य दीदी माँ साध्वी ऋतंबरा जी के हाथों, तो उन्होंने जो हमें आशीर्वाद, अभी सर लेस देन 1 मिनट है, जल्दी करना पड़ेगा। यस, जो आशीर्वाद देते हुए जो बात उन्होंने कही थी परम पूज्य दीदी माँ ने, वो मैं आपके माध्यम से शेयर करके लोगों को बताना चाहता हूँ। परम पूज्य दीदी माँ ने कहा था कि पहले लोग कहते थे कि आप विवाह करो,